کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے خطاب کیا اور اس کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے خواجہ آصف صاحب آئے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے پاکستان کے جرنیلی سسٹم کے اوپر، مارشل لاء کے اوپر اور کس طرح سے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کا ایک پوسٹ مارٹم اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر باقاعدہ طور پر نشر کیا گیا، اور پھر خواجہ آصف صاحب اس کا دفاع کرنے کے لیے آئے اور وہ جرنیلوں کا دفاع کر رہے تھے۔ اور دلچسپ بات ویورز اس کے اندر یہ ہے کہ شاید وہ یہ بھول گئے کہ جن جرنیلوں کا وہ دفاع کر رہے ہیں ان سے وہ کس طرح واٹس ایپ کالز کے اوپر بھیک مانگتے رہے اس مینڈیٹ کی جسے پاکستان کی عوام نے انہیں نہیں دیا تھا۔ اور اس سے پہلے اور جو ہسٹری ہے ان کے لیڈر محبوب قائد نواز شریف صاحب کی، کہ کس طرح وہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کی سیاست میں انہوں نے قدم رکھا۔ ویورز جو سخت باتیں کی ہیں اور جو پاکستان کے ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی عمر ایوب کی، اور پھر جو جواب خواجہ آصف صاحب کی طرف سے دیا گیا، اور تاریخ جو ہے وہ کیا جواب دے رہی ہے خواجہ آصف کو، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے عمر ایوب صاحب نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1971 میں جنرل یحییٰ نے بھی فرد واحد کی حیثیت سے فیصلہ کیا اور پاکستان ہمارا ملک ہم سے جدا ہو گیا۔ جو بھی آئین کو معطل یا ختم کرے گا اس پر سنگین غداری عائد ہوتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو اب تک نہیں بنایا گیا۔ اہم تنصیبات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں غائب کی گئی، کس کے کہنے پر غائب ہوئی۔ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے۔ کمشنر لیاقت چٹھا آج بھی غائب ہے اور اسے کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ نے پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کمشنر صاحب کا کوئی کیس چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہاں پر ہیں، کس کے پاس ہیں اور کس حیثیت میں ہیں، اور لا آف دا لینڈ کیا کہتا ہے۔ ویورز اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، سرکار آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مخصوص نشستیں چھینی گئی، صدارتی الیکشن درست نہیں، ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی۔ یہی بات میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ سرمایہ کار کو تحفظ چاہیے، اسے اعتماد چاہیے کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی نظر نہیں ہوگا بلکہ وہ محفوظ ہے، اور محفوظ ہاتھوں میں اسے اس کے ثمرات ملیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر روز خلائی مخلوق سے سامنا ہوتا ہے، عمر ایوب صاحب یہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آئی جی پنجاب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا بھی حوالہ دیا۔ ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں یہ کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے، سیکیورٹی ادارے ریاست نہیں، وہ ریاست کے ٹولز ہیں، ملازمین ہیں، حاکمیت اللہ رب العزت کی ہے، اس کے بعد پاکستان کے عوام کی ہے، سیکیورٹی ادارے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اور پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا بھی حوالہ دیا کہ لندن پلان کا انہوں نے بھی اعتراف کیا، تیزی سے بڑھتی معیشت لندن پلان کی وجہ سے تتر بتر ہو گئی، اور اس کا جواب دینے کے لیے اور پھر انٹری ہوتی ہے دی گریٹ خواجہ آصف کی، جو پاکستان کی سیاست میں اپنی سیاست اور اپنے کردار کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بالوں کی وجہ سے جن کا رنگ سفید ہے، بلکہ وہ جس طرح سے اپنے بالوں کے رنگ کی طرح سفید جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے وہ مشہور ہیں۔ ان کی انٹری ہوئی اور انہوں نے پھر کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا۔ پہلے حلف کی خلاف ورزی ایوب خان نے ملک کا پہلا مارشل لا لگا کر کی تھی۔ آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز فیلڈ مارشل ایوب خان سے کیا جائے۔ ایوب خان کی لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے۔ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ انہیں گھسیٹا جائے اور ان کو سر عام جو ہے پھانسی دی جائے، سیٹھ وقار صاحب کا فیصلہ آیا، تو اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کافی زیادہ اس پر تنقید بھی کی، اور پھر لوگوں نے کچھ اس کے جو نون لیگ کے اپنے لوگ تھے اس میں یہ شامل تھے کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ لیکن ویورز آج ایک ایسے فرد کو جو اس دنیا میں نہیں ہے اسے قبر میں سے نکال کر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت کہاں جاتی ہے آپ کی یہ جمہوری غیرت جب آپ جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کا اعلی کار بنتے ہیں، ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کوئی اگر یہ کہے نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بری ہے، سیاستدان برا ہے،
जो मदद मांगता है, जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता, करतूत होंगे तो भरोसा होगा ना, करतूतों की बुनियाद के ऊपर आपको वोट पड़ता है। आप अवाम के साथ खड़े हो, पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी होगी। फिर जब इन्हें एहसास होता है ना, तो फिर आपको नवाज शरीफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर डील करके भागता हुआ नजर आएगा, और फिर डील करके वापस इस निज़ाम में आपको आता हुआ नजर आएगा। और फिर किसकी मदद से? एक जर्नैल की मदद से। उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को जब वो एक्सटेंशनें दे रहे थे, उस वक्त याद नहीं था कि हमने एक्सटेंशन नहीं देनी क्योंकि ये जमहूरियत को फांसी लगा रहे हैं। और आज आप जो शख्स दुनिया में नहीं है, जैसा भी उसका किरदार था, आप उसे कब्र से निकाल कर फांसी देने की बात करें। क्यों? सिर्फ आपने पॉइंट स्कोरिंग की, इसलिए कि आपको पता था कि आपके सामने कौन खड़ा है और उमर अयूब का फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ क्या ताल्लुक है। और अब दादा के ताने जो हैं वो पोते को दिए जा रहे हैं। क्या ये ताना दुरुस्त होगा? व्यूअर्स, ख्वाजा आसिफ ने खुद इतराफ़ किया कि 2018 के जनरल इलेक्शन में जब वो उस्मान डार के खिलाफ हार रहे थे तो जनरल बाजवा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, और जनरल बाजवा की तरफ से जवाब आता है कि परेशान होने की जनाब ज़रूरत नहीं है, और फिर वो जीत जाते हैं। क्या तब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत दुरुस्त थी? जनरल ज़ियाउल हक का फर्जंद एजाजुल हक फॉर्म 47 पर जीतता है, वज़ीर-ए-आज़म का वोट नून लीग को दिया। क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कबूल है? उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते कि जनाब निकालो ज़ियाउल हक को भी कब्र में से और दो फांसी। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन के बाद मजलिस शूरा के साबिक चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद सफदर को स्पीकर के लिए नामजद किया गया। ख्वाजा सफदर आमिर जनरल ज़ियाउल हक के पसंदीदा उम्मीदवार थे। मियाँ अब्दुल सत्तार समेत असम्बली के 13 अरकान ने सैयद फ़खर इमाम को मुकाबले में नामजद कर दिया, और फिर स्पीकर इलेक्शन का नतीजा हैरानकुन था। पहली बार असम्बली का रुकन बनने वाले सैयद फ़खर इमाम ने जनरल ज़ियाउल हक की पसंदीदा उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद सफदर को शिकस्त दी। इलेक्शन में 230 अरकान ने वोट डाला। फ़खर इमाम ने 119, ख्वाजा सफदर ने 111 वोट लिए, और ये आमिर जनरल ज़ियाउल हक की पहली सियासी शिकस्त थी। और ये वही ख्वाजा सफदर हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद मोहतरम हैं। अब ख्वाजा मोहम्मद सफदर बाद में मोहम्मद खान जुनेजो के वजीर खुराक बन गए। और फिर व्यूअर्स, क्या ज़ियाउल हक का फेवरेट उम्मीदवार होना दुरुस्त अमल था? ख्वाजा साहब पूरा सच बोले ना कौम के साथ। ख्वाजा आसिफ के लीडर मियां नवाज शरीफ को सबसे पहले जनरल जिलानी ने मुतारिफ करवाया। इसके बाद जनरल ज़िया से होता हुआ सिलसिला जो है वो जनरल बाजवा तक जा पहुंचा। हर बार जर्नैलों से डील करके बाहर गए और फिर वापस भी आए। क्या ये दुरुस्त अमल था? और फिर जब आप ये डीलें कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये फांसियों का ख्याल आपको क्यों नहीं आता? उस वक्त आपकी हवा नहीं निकलती, खामोशी आप इख्तियार करते हैं। और जब कोई जर्नैल कुर्सी पर बैठा होता है ना, उस वक्त आपसे टक्कर देने के लिए तैयार नहीं होते। आज आपको कैदी नंबर 804 पता है क्यों बुरा लगता है? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहा है माफ़ी का। वो मुतालबा कर रहा है कि वो हकाइक बताए जाएं जो 9 मई के हवाले से हमारे खिलाफ मौजूद हैं। और वो क्या मुहर्रकात थे कि सीसीटीवी फुटेजेस को आपने गायब कर दिया। वो सवाल कर रहा है इस निज़ाम के ठेकेदारों से कि अगर मेरे खिलाफ सबूत हैं तो लाओ, दो सज़ा। और उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी पसंद की जमहूरियत है वो शायद वो ख़तरे में पड़ जाती है। सियासतदान व्यूअर्स ना इस पूरे खेल के अंदर जिम्मेदार हैं। जब आप पाकिस्तान की अवाम पर भरोसा नहीं करेंगे और अवामी मैंडेट के साथ नहीं जाएंगे और कुछ लोगों के साथ चले जाएंगे, तो फिर हालात जमहूरियत के ऐसे ही होंगे। और जब आप सहारे तलाश करेंगे, वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर आप जो है वो किसी और को इज्जत देने लग जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान की अवाम भी आपको रद्द करेगी और फिर सियासतदान ही वजह बनते हैं। आज इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम क्यों खड़ी है? ये सवाल हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो ये समझता है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का इस्तेहसाल हो रहा है। जमहूरियत को फांसी पर आप लोगों ने लटका दिया, और इसी निज़ाम में इमरान खान जो है वो फातेह बनकर क्यों निकला? क्योंकि उसने डील नहीं की, ना मुज़ाकरात अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम जो है ना उसके ऊपर बिलीव करती है। यही वजह है कि ये शायद जो क्रेडिट है वो किसी और लीडर को नहीं मिलेगा, सियासतदानों को नहीं मिलेगा। ये सियासतदान लीडर बनने की कोशिश तो करेंगे लेकिन ये लीडर बन नहीं सकेंगे। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान परमानेंट छीनने का बंदोबस्त किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया, यानी ये बी टीम बनकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ये इतराज़ात लगाता है, और 3 मार्च को होने वाले इंतखाबात पर 7 इतराज़ात जो हैं वो आयद किए गए हैं।
पहला इतराज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाया गया, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन पर सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 5 साल में नहीं कराए, और ये वो नुक्ता था जो निकाल कर लाए। इसके पीछे जो ज़हन चल रहा है ना, इलेक्शन कमीशन तो है ही है, लेकिन अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो यकीनन इस तंजीमी ढांचे के हवाले से और इजलास के हवाले से पहले भी कह चुके हैं कि जनाब इनकी कोई बॉडी नहीं है और ये बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, लिहाजा जो ये मैंडेट है इस जमात को रखने का और ये जो जहेज़ में अगर आप देना चाहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात जो है उसे जहेज़ में लेना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतजामी ढांचा 5 साल से मौजूद नहीं है। अब बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है, ये सवाल पूछा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और फिर पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए। क्या पीटीआई की 31 जनवरी 2024 की जनरल बॉडी मीटिंग सेक्शन 208 के मुताबिक थी और सेक्शन 208(3) के तहत पार्टी इलेक्टोरल कॉलेज बनाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मार्च को मुबैना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस रिकॉर्ड के मुताबिक जनरल बॉडी की करारदाद के तहत फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया गया। ये भी सवाल जो है वो पूछा है। और पीटीआई आइन के तहत फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करती है। जनरल बॉडी और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस है क्या, ये भी सवाल जो है वो पूछा गया। और फिर जनरल बॉडी ने चीफ ऑर्गेनाइजर तैनात किया, फिर इसी चीफ ऑर्गेनाइजर ने फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिफाई किया। क्या चीफ ऑर्गेनाइजर की तैनाती और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जनरल बॉडी कर सकती है? फिर व्यूअर्स ये भी सवाल उठाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर 5 दरखास्तों पर क्या मौकिफ है? क्यों ना इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर सेक्शन 208(5) के तहत कार्रवाई करे? और फिर इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 208 क्या कहता है? इस सेक्शन के तहत 5 साल में इलेक्शन जरूरी हैं। हर पार्टी के मेंबर को चाहिए कि इसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पूरा मौका दिया जाए और पार्टी पर आने वाले नए ओहदेदार उनकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दी जाए और इसके साथ ही वो लिस्ट अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाए। फिर ये भी सवाल है जी कि क्या पीटीआई को बल्ला वापस नहीं मिलेगा? तो व्यूअर्स अब तक के जो हालात और सूरत हाल बता रही है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि खान साहब के खिलाफ केसेस और वहां से उनकी जान छूटेगी तो हमने फिर जमात को जो है वो खड़े नहीं होने देना, और जहां जहां से हम महाज तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खोल सकते हैं तो हम इसे खोलेंगे। अब मसला यहां पर यह है कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला देगा ये हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि नाका लगाकर बैठे हुए हैं काजी साहब। और फिर व्यूअर्स देखना ये भी है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अब जो बेंच बनने जा रहा है ये 5 रुकनी बेंच होगा जस्टिस मंसूर की सरबराही में। अगर ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती हैं और फिर जिस तरह से सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद है, रजिस्टर्ड है और इसकी कानूनी हैसियत है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इस प्रेसिडेंट को जो है वो ओवरसी नहीं कर सकता और फिर इन्हें देखना पड़ेगा। लेकिन व्यूअर्स इस मुल्क के अंदर ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, टाइम बाय किया जा रहा है। खान साहब को अंदर रख के टाइम बाय किया जा रहा है कि अगर बाहर आ गए तो फिर वो 2 साल का जो फार्मूला लेकर पाकिस्तान के खैरखा फिर रहे हैं उस फार्मूले का ड्रॉप सीन हो जाएगा और फिर 2 साल जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की वो नहीं चल सकेगी। और जब तक एक्सटेंशन का मामला जो है वो किसी मकाम पर नहीं पहुंचता और किसी किनारे पर नहीं लगता, हम जो है एक टाइम बाय कर सकें, वो भी खान साहब के आने की वजह से बाहर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये टाइम बाय किया जा रहा है, पार्टी को घसीटा जाए, लंबी लंबी तारीखें दी जाएं और फिर जितना टाइम बाय किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन बतौर आलाकार पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं उनका और हुकूमत का जो बेनिफिशरी है ये सारे का सारा काम जो है वो कर रहा है।